آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. بڑی خوبصورت تعلیم آج خدا کے کلام میں سے دینے جا رہا ہوں. مکاشفہ کی کتاب میں سے میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مدح ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. بس سرگرم ہو، توبہ کر، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے، قضات 2 باب، قضات کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت. اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے وکیل کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی. اگر آپ 10ویں آیت اسی باب کی پڑھیں، 10ویں آیت. اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے جانتی تھی. اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالین کی پرستش کرنے لگے. انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کو جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتوں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے اور خداوند کو غصہ دلایا. ایک ریفرنس میرے ساتھ اور نکالیے، 2 تواریخ 15واں باب اس کی پہلی آیت اور اس کی 2 آیت میرے ساتھ پڑھیے. اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا کہ اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا. اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا، بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا. آخری ریفرنس متی کی انجیل 18واں باب 20ویں آیت. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب بولے آمین. یہ سب بیٹھ جائے. آج جو خدا کے کلام میں سے تعلیم دینے جا رہا ہوں ریولیوشن، بک آف ریولیوشن میں سے لدوکیا کی کلیسیا، اور نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، یعنی to the church in the Laodicea and neither could not hot be zealous. تو لدوکیا کی کلیسیا اور نہ سرد ہے نہ گرم ہے، یعنی پرجوش
बिज़ेलिस कहते हैं पुरजोश होना, जैसे बॉयल पानी किया होता है, बॉयल होता है और जोश मारता है। तो इसके तलु से बिज़ेलिस के तलु से तालीम यहाँ पर दूंगा। और ये इस हिस्से का ये सेकंड हिस्सा है। मैंने बताया 5 हिस्सों के जैसे हम मकाशफा की किताब को लेंगे और इसका ये पहला हिस्सा गुजर चुका है। दूसरा हिस्सा हम चल रहे था चर्चिस के जो लेटर लिखे गए उसके ताल्लुक से। ये लास्ट कलीसिया को लेटर लिखा गया, ये लास्ट इस हिस्से का लास्ट मैसेज है। और उसके बाद जो है आसमानों की तालीम आएगी, वो बहुत अहम है। उसके अंदर आपकी कोई छुट्टी ना हो, जरा गौर कीजिए, उसके अंदर बहुत खूबसूरत तालीम, यानी इससे बढ़कर आसमानी नक्शा जो है, हर चीज आसमान की चीज जो है चीजें हैं उनके बारे में तालीम जानी है। लिहाजा लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा गया है, यानी खादम को लीडरशिप के ताल्लुक से तालीम। तो खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि वो फरमाता है, और जब लास्ट आयत आती है तो कहते हैं खुदा का रूह फरमाता है। आमीन। तो यीशु मसीह जब कलाम यहां पर लदूकिया की कलीसिया से कर रहा है, तो यूहन्ना आरफ जो पितमस के जजीरा में टर्की के इलाका, जो आज का टर्की का इलाका है, एशिया कोचिक के अंदर ये कलीसिया थी, 7 चर्चेस थी चर्च, और इनको लेटर लिखा गया है और ये इनकी करेक्शन की गई है, चर्च की करेक्शन के सही तौर पर खुदावंद की तारीफ करें। ये वाहिद लदूकिया की कलीसिया थी जिसकी कोई तारीफ नहीं की गई, और ये बाकी तमाम 6 की 6 कलीसिया गरीब, माली तौर पर गरीब थी, मगर ये वाहिद कलीसिया थी जो रिच थी उस दौर के अंदर। इस कलीसिया के अंदर बिजनेसमैन थे और टॉप का बिजनेसमैन जो था इस कलीसिया के अंदर था, और ये कलीसिया बहुत अमीर कलीसिया थी, दौलत वेल्थ इनके पास थी इस कलीसिया के अंदर। और खुदा का बेटा यीशु मसीह जब भी कलीसियों से कलाम करता तो अपनी यानी कि अपनी ऑनर को, अपनी इज्जत को, अपने वकार को बयान करता है, यानी अपनी जिंदगी को उनके सामने जाहिर करता है और कहता है कि मैं जो आमीन हूं, बरहक हूं, बरहक सच्चा हूं। आमीन। यानी खुदा का बेटा सच्चा, उसके अंदर झूठ जरा सा भी नहीं है, वो अपनी जात के तरफ से तालीम देता है। फिर वो कहते हैं मैं आमीन हूं, मैं हक हूं, बरहक हूं, सच्चा खुदा हूं, ये फरमाता हूं, तेरे कामों को मैं जानता हूं। तो लदूकिया की कलीसिया से कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना सर्द है ना गर्म है, मैं तू नीम गर्म है, या तो तू सर्द हो या तू गर्म हो, लेकिन तेरी पोजीशन, तेरी हालत नीम गर्म हालत है। नीम गर्म यानी आप कह सकते हैं कि नीम गर्म हालत खुदावंद को पसंद नहीं है। कहता है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अंदर से निकाल फेंकने को, टू वॉमिटिंग आती है ना, मुझे किसी को भी आ सकती है। तो क्राइस्ट यीशु मसीह खुदा का बेटा कहता है कि मैं तुझे निकाल फेंकने को हूं, क्योंकि तू क्या है, नीम गर्म तेरी हालत है। तो नीम गर्म जो हालत होती है, ये ऐसी हालत कि वो बिलीवर, ईमानदार ऐसे हैं कि दौलत वेल्थ उनके पास है, मगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम दौलतमंद हैं, तो हम किसी चीज के मोहताज नहीं है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है नीम गर्म हालत है उसकी कलीसिया की। और नीम गर्म हालत होती है दुनियादार भी लोग हो और खुदा के साथ भी चल रहे हैं, यानी दरमियानी हालत। ऐसी हालत खुदावंद को पसंद नहीं। अगर कोई कहे कि मैं 40% खुदावंद के साथ चल रहा हूं, या 60% या 80% खुदावंद के साथ चल रहा हूं, तो खुदावंद को ये हालत है, ये नीम गर्म हालत है। खुदावंद को एक कलीसिया ईमानदार बिलीवर 100% नजर आना चाहिए उसकी लाइफ, यानी उसकी जिंदगी के अंदर सरगर्मी हो, बिज़नेस हो, पुरजोश हो,
जोश से भरा हो, अपनी खिदमत जोश के साथ करने वाला हो। ये नहीं कि नीम गर्म हालत हो, कभी नीचे कभी और ऊपर, कभी डाउन, कभी बिल्कुल गिर जाना। तो खुदा का बेटा क्राइस्ट इस कलीसिया को तालीम दे रहा है। क्या कह रहा है कि ना तू सर्द है ना गर्म है, तू नीम गर्म है। मैं तुझे अपने अंदर से निकाल फेंकते हूं। यानी फिर कहा गया कि तू अपने आप को दौलतमंद कहती है, मगर तू गरीब है, तू कम वक्त है, तू कम अखबार है, तू अंधी है, नंगी है। ये है हालत कलीसिया की। हालांकि वो अपने आप को रिच कह रही है। दौलतमंद होने से, अमीरी होने से कोई रूहानी बरकत उनके पास नहीं थी। वो समझते थे कि हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास दुनिया की हर ख्वाहिश है, देन हम बड़ी अमीर कलीसिया है, हम किसी के मोहताज नहीं है। तो भाइयों, ये चर्च है। ऐसे चर्च को गाइड किया गया, ऐसी कलीसिया को खुदा का बेटा गाइड करता है। वो जो अमीर है, सच्चा है, बरहक है, झूठ नहीं बोलता। वो अपने मुंह से जो कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना सर्द है ना गर्म है, तू नीम गर्म हालत है तेरी। तो अपने आप को कहती है मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, तू कम वक्त है, तू गरीब है, तू अंधा है, नंगा है। तो आप देखिए, ये नंगा हालत, अंधा हालत, यानी ऐसी हालत है कि उस कलीसिया के अंदर कलाम है ही नहीं। ये तो उस शख्स की हालत होती है, अंधा है, नंगा है, भूखा है, कम वक्त है, कम ख्वार है। तो ये हालत उस कलीसिया की थी, मगर वो अपने आप को रिच समझते थे। ऐसी कलीसिया के अंदर कलाम है नहीं। वहां का खादम कलाम देने वाला नहीं है, उसके पास तालीम नहीं, वो कलीसिया को तालीम नहीं दी जा रही। वहां पर लीडरशिप तालीम से खाली है। और आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी कलीसियां हैं, अपने आप को रिच समझती है, दौलतमंद समझती है, मगर ऐसी कलीसिया से खुदा कलाम करता है, क्योंकि कलाम है नहीं उस कलीसिया के पास। दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, अच्छी चर्च बिल्डिंग हो सकती है, मगर खुदा कहता है तू कम वक्त है, ख्वार है, नंगा है, अंधा है। ये कलीसिया को कहा गया है। यानी ऐसी कलीसिया जो नीम गर्म है, जिस कलीसिया का हाल वो खुदा के साथ भी चल रहे हैं, मगर दुनियादारी में, दुनिया का फैशन, दुनिया के लक्षण उस कलीसिया के अंदर, उन जिंदगियों के अंदर नजर आते हैं। लिहाजा खुदा कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने दूंगा। खुदा के साथ भाई लाइफ को 100% खुदावंद पसंद करता है। ये नहीं कि कभी आए कभी गए, छुट्टियां किया, फिर तालीम का पता ना लगना, आज कलाम क्या हुआ था। ये नीम गर्म हालत है, कभी आए कभी गए। ये खुदा, ये मजाक नहीं है। ये कलीसिया, खुदा का बेटा इस कलीसिया में फिरता है। कहिए आमीन। शबा थानों के अंदर वो फिरता है, तालीम देता, करेक्शन करता कि किसी तरीके से ये बंदा बच जाए यार, ये कलीसिया आसमानी कलीसिया हो जाए, आसमानों पर हमें जाना है। और कोई झूठा शख्स हो, कोई नापाक शख्स हो, इसलिए उसने कहा मैं आमीन हूं, मैं हक हूं, बरहक हूं, सच्चा खुदा हूं। उसके मुंह से जो लफ्ज निकले झूठे नहीं है। ये कह रहा है क्राइस्ट खुदा का बेटा। लथूकिया की कलीसिया को ये कहा गया कि तू का वक्त है, तू अंधा है, नंगा है। ये आदम की हालत थी। और लिखा कि जब उसने गुनाह किया तो फिर अंधा हो गया। खुदा की हजूरी से और मारकर आदम हवा को निकाला गया, क्योंकि भाई अंधा भी हो गया। पहले तो खुदा को देखता था, अब छुपता है। तो खुदा की हजूरी से गुनाह को अंदर आ जाए, गुनाह जिस जिंदगी के अंदर आ जाए वो अंधा ही हो जाता है। रूहानी तौर पर वो अंधा हो गया। अल्लाह के लिखे जब उनकी खुदा के साथ चलता था तो खुदा उसके साथ बातें करता था, मगर जब सिर्फ गुनाह आया तो अंधा हो गया, नंगा भी हो गया। इसलिए अपने आप को पत्थरों
में छुपाने लगा। आदम हवा, उनको पता चल गया, गुनाह जब हुआ तो कहने लगे हैं हम नंगे हैं। तो नंगे तो पहले भी थे भाइयों, मगर जब गुनाह किया है तो फिर अंधे भी हो गए, नंगे भी हो गए। इसी तरह जिन कलीसियों के अंदर, जिन लीडरशिप के अंदर कलाम नहीं है और दुनिया की दौलत होने से आप भी रूहानी तौर पर बरकत नहीं हासिल करते। कुछ लोग कहते हैं दौलत आ जाए, दौलत ही इकट्ठी करते रहते सारी जिंदगी, मर जाते हैं, मरने के बाद कब्र में दौलत लेकर जाते हैं नहीं। पहले दौर के अंदर जो बादशाह मरते थे वो कहते सारी दौलत खजाना जो है हमारे साथ दफन कर दी जाए। वो कब्रें जब, इसलिए तो आज कोई चीजें खोदी जाती हैं तो वो खजाने मिलते हैं, मरने के साथ ही दौलत भी दफन कर देती जाती है। और भाइयों दौलत साथ नहीं जाएगी, इसलिए क्या अगर कोई दौलत से प्यार करता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। वो दौलत भाई लिखे दुनिया के अंदर उस शख्स का खुदा बन जाता है। अगर कोई इतवार को कोई जरूरी काम तो हो गया, खुदा को छोड़कर कोई इस कलाम की दौलत को छोड़कर कोई और जगह पर जाए, यार शेम की बात है। दरवाजे खुले हैं, आसमान खुला है बंदों के लिए, कोई कदर ना करे, नींद गर्म हालत में रहे इस दौर के अंदर भी। हालांकि वो कलीसिया का लेवल देखिए, खुदा की हुजूरी में पहुंच नहीं है भाई। 50% है खुदा के साथ चल रहे हैं, दिन चर्च के अंदर मौजूद है वो कलीसिया, और लिखा है क्राइस्ट ने वहां पर करेक्शन की है कि मैं जो सच्चा हूं ये फरमाता हूं, तेरे कामों को जानता हूं। और फिर लिखा है कि तू न सर्द है न गर्म है। भाई कुछ तो हालत अपना ले, तू नींद गर्म है, लिहाजा मैं तुझे अपने अंदर से निकाल फेंकने को हूं। तू अपने आप को कहती है मैं दौलतमंद हूं, मेरे पास दौलत है, तू कमबख्त है, तू गरीब है, तू अंधी कलीसिया। किसी ने आज अंधा कहो हां तो तू अन्ना है, कलाम है, नंगा है, नंगी कलीसिया, अंधी कलीसिया। कलाम नहीं है वहां पर। अगर खादम के पास वहां पर कलाम होता तो जैसे आज यहां पर काशवा की सीरीज चल रही है, वहां पर कौन सी सीरीज चलेगी? पोर्टर हाउस की सीरीज, जबूर की सीरीज। आइए खुदावन की जलाल की भाई कलाम होगा। कलाम अगर खादम के पास मुझे ना कहानियां सुनाता फिर, दुनिया की कहानियां स्टार्ट हो, दुनिया की स्टोरियां सुनाता फिर खादम, कलाम सुनाए ना भाई, ये हालत अगर कहानियों वाली हालत है। लिखे उनके लोग भी वैसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं और फिर उनके साथ बड़े जुड़े रहते हैं। तो आगे जाकर मेरे बहुत आगे तालीम जाएगी और मैसेज पहुंचेगा। तो यहां पर खुदावंद के कलाम लिखा तू गरीब है, लिहाजा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद है। बोलिए आमीन। क्या कर? आग में तपाया हुआ सोना, ये यीशु मसीह ने कहा मुझसे आग में तपाया हुआ क्या कर? सोना खरीद ले। तो भाइयों आग में तपाया हुआ सोना तेरा कलाम भट्टी में ताया गया है। इसलिए दाऊद कहता है जानिए तेरा कलाम ताया हुआ है, भट्टी में 7 दफा ताया गया है। खालिस कलाम ये है, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना। भाई कलाम सोना है, हीरे मोती से बढ़कर है। इसलिए दाऊद कहता तेरा कलाम हीरे मोती से, कुंदन से, सोने से ज्यादा कीमती है। हालेलुया! तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। ये है कलाम। लेकिन ये लदूकिया की कलीसिया कलाम से खाली, दुनिया की बेस, दुनिया की अमीरी, दुनिया की दौलत उसके पास है, मगर कलाम नहीं है वहां पर। इसलिए खुदा ने कहा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू गरीब ना रहे। मुझसे ले कलाम को, फिर आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। तू जो अंधा है ना, तेरी आंखें खराब हैं, मुझसे सुरमा खरीद ले। हालेलुया! ये नहीं कि फैशन वाला सुरमा, इसकी बात ही है। इस दौर के अंदर भाइयों मेडिसिन
मेडिसिन जो यूज की जाती थी आज ड्रॉप यूज की जाती है, आंखें जो खराब हो जाए, आंखें आईसाइट वीक हो जाए तो ग्लासेस यूज की जाती है, उसके बाद ड्रॉप यूज की जाती है, मेडिसिन। तो उस दौर के अंदर ये टर्म यूज की गई है सुरमा ही। मुझसे क्या कर, सुरमा ले ले ताकि तू भीना हो जाए। आमीन। तो ये आंखें खुल जाए। आदम हवा ने गुनाह किया, आंखें बंद हो गई रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुद, इसलिए वो नंगे नजर आने लगे। खुदा का बेटा कहता है मुझसे सुरमा खरीद ले ताकि तेरी आंखें खुल जाए, तू भीना हो जाए। आमीन। और आगे क्या कहता है खुदा उनके कलाम के अंदर, यहां जरा मेरे साथ पढ़ लीजिए। खुदा तेरा शुक्र, प्रेज हालेलुया। सुनिए पे ये 18वीं आयत, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर तू नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू भीना हो जाए। आमीन। पोशाक भी खरीद ले मुझसे। भाई तेरी पोशाक मैली हो गई है, पोशाक मुझसे खरीद ले ले पोशाक। भाई निजात की ये पोशाक है, ये यीशु मसीह के जरिए से मिलती है। यीशु मसीह ने जान देकर जो हमारी खातिर जान दी है, हमें निजात दी है, निजात का खिलत पहना दिया है, निजात का लिबास पहना दिया है। यीशु मसीह कहता है मुझसे ले ले, कोई और नहीं दे सकता। ये लिबास सफेद पोशाक ले ले ताकि तू शर्मिंदा ना हो, अपने नंगेपन को ढांक ले, क्योंकि मैं बरहक हूं, सच्चा खुदा हूं। जो मैं मुंह से कह रहा हूं ये सच बोल रहा हूं, सच्चा खुदा हूं। इसलिए मुझसे पोशाक ले, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। ये देखिए इतनी मोहब्बत करता है इंसान से, हालांकि बर्दाश्त नहीं करना। कहता है मैं तुझे अंदर से निकाल फेंकने को, तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरे गुनाह की वजह से, तेरी नापाकी की वजह से, मगर साथ ही कहता है मुझसे सलाह, मैं तुझे सलाह देता हूं। फिर कहता है कि मैं जिन जिनको अजीज रखता हूं उन्हें तंबी करता हूं। ये नसीहत दी जा रही है, तंबी। बोलिए जिन जिनको अजीज रखता हूं, अजीज यानी मोहब्बत करता हूं, उनको क्या करता हूं, तंबी करता हूं, उनकी करेक्शन करता हूं। उनको इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है जो बेतरतीब लड़का छोड़ा जाता है, जिसकी तरतीब यानी जिसको मलामत नहीं की जाती, वो माँ बाप को रुसवा कर देता है। इसलिए लिखा कि अगर तू अपने बेटे को छड़ी मारेगा वो मर नहीं जाएगा बल्कि उसे हलाकत से बचाएगा। खुदा तंबी करता है, नसीहत करता है, करेक्शन करता है। तो खुदा के कलाम में लिखा मैं तुझे नसीहत देता हूं, तुझे तंबी करता हूं। तो तंबी भाई कलीसिया में होना जरूरी है। तो तंबी होगी देन करेक्शन होगी, लाइफ करेक्ट चलेगी, लाइफ सही चलेगी। तो इसलिए यीशु मसीह करेक्शन करता है। तो हमारी तंबी जब होती है तो हमें तकलीफ होती है। जब कहा जाता है भाई जी छुट्टी क्यों की, तो ये तंबी हो जाती है। खुदा का बेटा भी तंबी करता है, नसीहत करता है। तो भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब ये तंबी हो रही है आपकी। छुट्टियां क्यों करते हो, ये तंबी हो रही है। तो बात तो लिखे के बाद तो तंबी को सुनकर बिगड़ जाते हैं। लिखे रास को तभी कर, वो करेक्ट हो जाएगा, तेरी तारीफ करेगा, शुक्रिया अदा करेगा। एक शख्स को तंबी जब की जाती है, नसीहत की जाती है, भाई तू यार तू टाइम में चर्च नहीं आना, लेट क्यों आना, तू गुस्सा कर लेता है। भाई साहब मैनू ही कहते रहते, छुट्टियां का मैनू कहते रहे, आइसक्रीम का भी मैनू कहते रहते। तो भाई ये आपकी तभी हो रही है। आमीन। तो ये मजाक नहीं, कभी आए कभी गए, फिर ये खादम का काम है कि वो तभी करे, नसीहत करे। तो कहा जाता है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को जब तभी करता हूं, नसीहत करता हूं, तो वो जो है वो याद रखिए कि वो बाद में बिगड़ जाते हैं या पीछे छोड़ जाते हैं। तो यहां पर लिखा है कि तू अंधा है, नंगा है। अगर मैं किसी को कहूं अंधा है तू, चर्च नहीं आता, तू तो मेरा सिर ही फाड़ फाड़ दे, या मेरे फेस पे आग ला रहे। किसी भैन को कहता भैन तू की करनी, चर्च नहीं आती, लेट आनी, अंधी है, गरीब है, कुआर है। उन्हें
मेरे इश्तेहार थे नादरी चौक पे गए थे पादरी छड़ना में तो लंगे थे पास्टर नासर बनाया करना खुदावंद के कलाम में लिखा मैं जिनको अजीज रखता हूं उन्हें तंबीह करता हूं करेक्शन करता हूं नसीहत करता हूं। तो भाइयों लिखा है कि अगर एक रास्ता उसको तंबीह करेगा वो क्या करेगा थैंक यू पर्सन। तो कुछ लोग उंगली रख रहे पुत्र बोल क्यों नहीं आता दादा छुट्टियां कीतियां क्यों नहीं आया चर्च खुदा दी हजूरी च खुदा ने तुहानू बरकत दी तुसीं आओ काम कर रहे खुदा दा चुप्पी रहंदे अंदरों अंदरों गुस्से खाते हैं और समझो काम खराब है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उन्होंने मुंह भी मार देते तेरी ऐसी कैसे जी है ये हालत मैंने देखी है उसकी जुबान मुंह च रहती नहीं है वो वही खादमों को भी सुना देते हैं गल करके जावे की तरह। और लिखा है कि अगर रासबास को तंबीह करेगा वो ठीक होगा मगर एक शरीर को जब तंबीह करेगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो शरीर जो है वो तंबीह को रिसीव नहीं करता वो बिगड़ेगा जरूर जब उसे तंबीह की जाती है नसीहत की जाती है। इसलिए कि अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर कर जहां पर उसे जाना है उसी छड़ी मारेगा वो हलाकत का जहन्नम से बचाएगा मौत से बचाएगा। आज तो अपने बच्चों को कंट्रोल कर कुछ कहते रहे कुछ माओ को मैंने देखा अपने प्यो गाली काटा अब सोच नहीं तो साहब लगा प्यो छुट्टा मार इतनी मैं एक फैमिली को देखा मैं हैरान हूं यानी आज तो नहीं लेकिन 10 साल पहले की बात कर रहा लाड इसको फिर बड़ा होकर ऐसा छितर मारता थाने से पहले रहना समझ लग जाती नशों के अंदर पोर्टस के अंदर ऐसी फेलोशिप के अंदर चले जाते हैं औलाद बर्बाद हो जाती है माँ बाप को बर्बाद कर देती है। तो लिखे कि जो रासबाज है उसे तंबीह करेगा वो थैंक यू बोलेगा लेकिन शरीर को तंबीह करेगा तो वो बिगड़ जाता है। इसलिए कहा कि मैं तुझे सलाह देता हूं मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू गरीब न रहे मुझसे सफेद पोशाक ले ताकि नंगापन को खत्म करे तू आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू पीना हो देखना शुरू हो। ये है और खुदावंद के कलाम के अंदर जो दूसरा हवाला मैंने पढ़ा यहां अगर आप देखें कज़ाब के अंदर तो बनी इसराइल का देखा जलजाल से खुदावंद का फरिश्ता बुरकीम के अंदर आया। जलजाल एक वाहिद ऐसी जगह थी वहां पर जहां पर मूसा ने पड़ाव डाला और वहां पर तमाम फतवात का आगाज हुआ और खुदा जलजाल के इलाका में से होकर कलाम करता था बनी इसराइल से। ये वाहिद एक ऐसी प्लेस थी जहां पर खुदा लोगों से कलाम करता था। तो लिखा है कि मूसा की क़यादत के अंदर मूसा की डेथ हो गई फिर लिखा यशुआ आया यशुआ की डेथ हो गई और लिखा है कि वहां पर जब पुष्ट पैदा हुई अगली सुनिए मैं गौर से जो कहने बता रहा हूं अगली पुष्ट जो पैदा हुई लिखा है वो खुदा को नहीं जानती थी इसराइली थी अपने आप को इसराइल कहते हैं मगर उनको खुदा का पता नहीं सच्चे खुदा का कोई पता नहीं तालीम का कलाम का नहीं पता सच्चे कलाम का नहीं पता लिखा सिखाने वाले काहिन का नहीं पता ये तीनों चीजें उनको पता ही नहीं गैर मबूदों की परस्तिश करने लगी। लिखा खुदा ने उनके साथ अहद बांध रखा था उन्होंने अहद शक नहीं की यानी खुदा ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मगर लिखा एक पुष्ट ऐसी आई बनी इसराइल की उनको खुदा का नहीं पता पुत्रों का पता दुनियादारी का पता गुनाह का पता हरामकारी का पता मगर उस जिंदा खुदा को जानती नहीं। इसलिए लिखा है बुरकीम जलजाल से लिखा है खुदावंद का फरिश्ता वहां पर आया कोई नबी नहीं था वहां पर आने के लिए कलाम के ले खुदा से। अब देखिए ये हालत देखिए जब खादम कोई लिखा लीडर जब वहां पर खत्म हुआ आज लीडरों के लिए दुआ किया करें जिस कलीसिया में लीडर नहीं रहते वो कलीसिया बर्बाद फिनिश हो जाती है खत्म हो जाती है और आज खादमों के लिए दुआ कीजिए। लिखा है यशुआ जब खत्म हुआ अगली पुष्ट आगाज हुआ तो लिखा है उनको खुदा का ही नहीं पता लिखा है कि कलाम का नहीं पता शरीयत का नहीं पता फिर कहानत का नहीं पता कहन क्या चीज होते हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा फरिश्ता आकर उनको तालीम देता है और उसने कहा कि कौन
कितनी देर तक सच्चे खुदा से ना वाकिफ रही, फिर शरीयत से, कलाम से ना वाकिफ, सच्ची तालीम से, सच्चे कलाम से ना वाकिफ, सच्चे काहिन, सिखाने वाले काहिन से दूर रही। काहिन हो तो भाई, काहिन तो सारी होते हैं खिदमत करने वाले, मगर सिखाने वाला काहिन है, ये लिखा गया है। काहिन तो पूरी दुनिया के अंदर खादम खिदमत कर रहे हैं, मगर सिखाने वाले काहिन से दूर रहे तो बर्बाद होगा था। बुत परस्ती के अंदर चले गए, बदकारी करने लगे, गैर मबूदों के वालीद की परस्तिश करने लगे, बच्चों की कुर्बानियां बुतों के सामने गुजारने लगे। वही जो लोटे जो पैदा होते थे वो बुतों के सामने अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। आप सोचिए, यहां तक तलीम नहीं। इसलिए भाइयों, खादम भाई ऐसे नहीं तैयार होता, 20, 25, 30 साल लगते हैं तलीम देने वाला खादम जो होता है। वैसे तो खादम आपको ढेरों नजर आएंगे, मगर कलीसिया के अंदर ऐसा खादम हो जो सिखाने वाला हो और खुदा के साथ उस कलीसिया का राब्ता हो, सच्चे खुदा को जानते हो, फिर शरीयत से, कलाम से वाकिफ हो, सच्चे काहिन से वाकिफ हो, तो दिन सिखाने वाला जो खादम है वो कलीसिया के अंदर हो। वो तीनों चीजों से, जो दुनिया के अंदर कलीसिया इन तीनों चीजों को नहीं जानती, फॉलो नहीं करती, वो कलीसिया बर्बाद हो जाती है। उनकी डगर, उनकी राहें दुनिया के अंदर है, याद रखिए, जिनको खुदा का ही नहीं पता, और वहां पर कलाम ही नहीं नाज़िल होता, और वहां पर सिखाने वाला काहिन ही नहीं। उन कलीसियों का भाई ध्यान दुनियादारी के अंदर है, कोई और ही उनका फोकस है, खुदा नहीं फोकस होता। लिखा वहां पर आसा बादशाह आया, सुनिए, लिखा आसा बादशाह खुदावंद के साथ चलने लगा, तो लिखा खुदा ने उसका बहुत सारा जो 10 लाख कहते हैं दुश्मन ने, 10 लाख की फौज ने उसे घेर लिया, आसा बादशाह को, और इसके बाद 3 लाख लोग थे सिर्फ फौज। अब इसने खुदा से बात की, खुदा ने कहा, आसा मैं तेरे साथ, उसके साथ जंग लड़, तू घबराना, 10 लाख और 3 लाख, तेरे पास 3 लाख फौजी है, तू घबराना, इनसे डरना, मैं यहोवा खुदावंद तेरे साथ हूं। लिखा उसने जंग लड़ी और उसे बहुत बड़ी फतह हासिल की। आइए खुदावंद के जलाल के लिए वही क्या में 3 लाख और 10 लाख का क्या आपस में है, मगर खुदावंद ने उसे फतह बख्शी। जब वो खुदा के साथ चलने लगा, तो जब उसे फतह मिल गई तो फिर साथ साथ खुदा के साथ चलने लगा, साथ साथ दुनियादारी, बुतों की भी परस्तिश। तो लिखा खुदा ने नबी को वहां पर भेजा, नबी आ गया, आसा डर गया, उसने नबी आ गया क़याम नहीं के लिए। नबी ने क्या कहा उससे, आसा से, आसा देख, तू खुदावंद के साथ चलेगा तो खुदावंद तेरे साथ चलेगा, तू खुदावंद को छोड़ेगा वो भी तुझे छोड़ देगा। तो जब उसने कलाम की बातें सुनी ना, तो फिर उसने कहा, सॉरी खुदा, माफी मांगी, बहाल हुआ, कहा खुदावंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, बुत परस्ती नहीं करूंगा, गुनाह से दूर रहूंगा, नीम गर्म हालत को छोड़ दूंगा। तो फिर वो लिखा उसका दिल कामिल हो गया खुदावंद के साथ, वफादार होगा। उसने फिर लिखा वहां पर यहूदा की बादशाह के अंदर जो बुत परस्त लोग थे उनको मारा, भगाया, बुत परस्ती खत्म की उसने। और फिर लिखा है कि उसकी मां जो थी, सुनिए जो बात करने लगा, उसने यहूदा की बादशाह के अंदर से बुत परस्ती खत्म की, बदकारी नापाकी को खत्म किया, मगर उसकी मां उसके तख्त के साथ बैठती थी और उसने एक बुत बना रखा था। वो कहती थी इस बुत की परस्तिश करो। आसा खुदावंद के साथ चलने लगा, यार मेरी मां का ये हाल है, लोग मैंने की क्या गया, तो मसला खराब है, खुदा की परस्तिश नहीं कर रही मेरी मां। तो उसकी मां जब वो तख्त के पास आया तो उसकी मां वहां पर बैठी थी, बुत, ये मेरा बुत है, इसकी वर्शिप करो। तो खुदा के कलाम में आसा ने कहा, इस लेडी को नीचे उतारो तख्त से। देखिए इतनी जुर्रत, अपनी मां को नीचे उतारा है, और वैसी मां अगर दुनियादारी के अंदर हमें ले जाए, आसा को दुनियादारी के अंदर लेकर गई हुई थी मां। भाई अगर दुनियादारी के अंदर अपने बच्चों को ले जाए, वो दुनियादार औरत है। और आज भी बेशुमार मैं देखता हूं कलीसियाओं के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, माएं जो थे खुद चर्च में आती, बच्चों को क्या लाएंगे, बच्चों को छोड़ आती, खुद आ जाती है।
بچے مر جائیں جہنم کے اندر چلے جائیں وہاں پر چلے جائیں گے یہ فکر نہیں ہے. یا خاوند کو بیوی چھوڑ کر اکیلی آ جائے چرچ کے اندر, خاوند کو جہنم کے اندر پھینک دیا اس نے, یا ایک خاوند اکیلا خدا کی حضوری میں آ جائے اور جو خاوند آئے نا بیوی گھر میں بیٹھی ہو, یا بیوی آ جائے خاوند گھر کے اندر بیٹھا ہو, کام پر گیا ہو, کسی اور کام کے لیے گیا ہو. بھائیو یہ پوری ذمہ داری ہے. تو ایک ماں اپنے بچوں کی فکر نہ کرے, انہیں اپنی خدا کی حضوری میں نہ لائے, سکھائے نا. بھائی چرچ میں آئیں گے سیکھیں گے, بے شک تھوڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں, نو پرابلم. بھائی ایک وقت آئے گا اور سیکھ جائیں گے. بچوں کو لائیے خدا کی حضوری میں, انہیں پتا ہو کہ خدا کی حضوری کے اندر آنا ہے, خدا کے گھر جانا ہے. تو اسی لیے کیا ایک پشت آئی, انہیں نہ سچے خدا کا پتا ہے, نہ تعلیم کا, کلام کا, شریعت کا پتا, نہ کہانیوں کا پتا. تو بت پرستی کریں گے, دنیا کے اندر ہی جائیں گے. اس لیے ماں آسا کی بات, آسا بادشاہ کی جو ماں تھی, اس نے کہا کہ اس لیڈی کو نیچے اتارا تخت سے, نیچے اتار دیا تھا. بت کو بھی وہی توڑا, ختم کیا. تو خداوند کے ساتھ آسا چل رہا تھا. تو خداوند کے کلام لکھا ہے یہ اس کے پاس اسپرچل برننگ تھی, زور تھا, قوت تھا. خدا کے ساتھ چلتا چلتا ایک فوج نے اس پر حملہ کیا. تو یہ نہیں کہ خدا کے پاس جائے, خدا نے پہلے بھی اسے فتوا دی, فتح دی, مگر اس نے کیا کیا, غلطی یہ کر لی کہ اس نے, آرام کا بادشاہ تھا, اسے اپنے خزانے کی ساری دولت جو تھی اسے دے کر دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایسے کر لیا. اس کا کام تھا خدا کے پاس آئے, خداوند میں جنگ کروں یا نہ کروں, پہلے جیسے خداوند کے ساتھ چل رہا تھا. تو اس نے کیا غلطی کی, حالانکہ اس کا دل لکھا ہے کامل تھا, اس کا دل کیا تھا, کامل تھا. مگر کیا غلطی یہ کر رہا ہے کہ اس نے خدا پر بھروسہ چھوڑ کر اپنی دولت غیر قوموں کے حوالے کر دی. تو خدا نے کہا تجھے برکت دی ہوئی ہے, تو اسے فتح مل گئی. مگر خدا نے کہا, نبی اس کے پاس آیا, اس نے کہا اے آسا تو نے غلطی کی. یار خدا کے ساتھ چلتے چلتے تو نے غلطی کر لی, تجھے خدا پر بھروسہ نہیں ہے کہ جس نے تجھے فتح دی ہے. 3000 تیرے لوگ تھے اور 3 لاکھ, مگر 10 لاکھ پر بھاری تھے. تو آج تجھے خدا یاد نہیں آیا, تو نے خدا کو پوچھے بغیر ہی دشمن کو اپنی دولت لٹا دی. جو برکت, جو دولت میں نے تجھے دی, تو نے کیا کی, غیر قوموں کے حوالے کر دی. لہذا لکھا ہے آسا کو بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خداوند کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, اسپرچل برننگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, روحانی جوش کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, گرم ہوتے ہیں, جوش سے بھرے ہوتے ہیں, خدمت کر رہے ہوتے ہیں, مگر غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اور آج کا خادم کوئی غلطی کرتا نظر نہ آئے, کوئی کلیسیا کا ممبر غلطیاں نہ کرتا رہے, غلطی قبول نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکوں, نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے, نیم گرم حالت خداوند کو پسند ہے. لہذا لکھا ہے پھر آسا کو, لکھا ہے کامل تھا. آسا کو ایک روگ لگا پاؤں کے اندر, غلطیاں کرو گے تو پھر روگ تو لگن گئی. چلنا خدا کے ساتھ ڈرامے بازی والی خدمت خداوند کو پسند نہیں ہے. کہ جب چرچ سے باہر نکلے تو زبان ایسے چلے جیسے پتہ لگے کہ دنیا بیچ میں ہے. وفادار ہو, خداوند کے ساتھ رہے. خدا سچا ہے. خدا بھائی, خدا کے سامنے ہماری تصویریں ایسے واضح ہیں, شیشے سے اپنی تصویر دیکھتے ہیں نا. میں صبح یاد آیا میرے کو, بچے نے تصویر دیکھی شیشے سے, انہوں کسی اور کی تصویر یاد آ یار عجیب سی بات. پھر اس نے غور کیا, ہاں یار میری تصویر ہے, تو ہنسی والی بات سے کر گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نیم گرم حالت خداوند کو پسند نہیں ہے. آسا کی زندگی میں نیم گرم حالت آئی, مگر وہ لکھا خدا کے ساتھ کامل ہو گیا جب نبی اس کے پاس آئے. مگر غلطیاں کوئی کرتا پھر لیڈرشپ کے اندر, ایک کلیسیا کا شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے, غلطیاں کرتا پھر کبھی آئے کبھی نہیں, جھوٹ سچ پوچھتے ہیں بھائی جی کیوں نہیں آئے, اتنا جھوٹ صفائی سے پیش کرتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا تو خالص کے لیے سوچ پوچھے گا بھائی جی آئے نہیں, اتنا سونا جھوٹ بولا نہیں سکتے. اسی بھی منہ ایسے بنا رہے ہیں بھائی تو صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے بھائی ہم سے جھوٹی نہیں باتیں. اسے لکھا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے حنانیہ سفیرہ بڑے شریف, بڑے اچھے, وفادار, خدا کے ساتھ چلے گئے. تو پترس نے خدا کے حالت میں کہا ہاں انہیں نہیں پروپٹنگ کی ہے, دیا دے یقین پوری ہے, ہاں ہاں
फिर मर गए, नीचे गिरे और दोनों मर गए। और भाई पता चल जाता है, कोई बंदा 1000 रुपया हमें दे, तो ये हमारा 10वां हिस्सा है, तो हमसे भाई छूसती बात है। वफादारी के साथ चले, नीम गर्म हालत खुदा को पसंद नहीं है, सांप वाली चाल नहीं पसंद। आमीन। ऊंच नीच का कोई पता हमें चल जाता है, इसलिए भाइयों खुदा के सामने झूठ ना बोले, खुदा सच्चा है। देखिए यीशु मसीह ने खुद कहा है लदूकिया कलीसिया, मैं आमीन बढ़त सच्चा खुदा हूं, ये फरमाता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और हमारी जिंदगी के अंदर एक जोश देखना चाहता हूं। और जो दूसरा वाला मैंने पढ़ा मत्ती की इंजील में लिखा है, जहां पर 2 या 3 जमा होते हैं वहां पर मैं क्या होता हूं? बोलिए, मौजूद होता हूं। बोलिए, मैं क्या होता हूं? भाई 2 या 3 लोग मौजूद हो तो भाइयों वो रूहानी जोश के अंदर होंगे, नीम गर्म हालत ना हो, रूहानी जोश के अंदर होंगे। तो लिखा है खुदावंद वहां पर मौजूद होगा, खुदा आएगा वहां पर। 2-3 क्यों ना हो, थोड़े क्यों ना हो लोग, चर्च के अंदर में थोड़े क्यों लोग ना बैठे हो, मगर जहां पर भाई गर्म लोग होंगे जोश के साथ, जोश उनकी जिंदगी के अंदर होगा, नीम गर्म हालत नहीं होगी, तो खुदा उनकी दुआ सुनेगा। और अगर कोई 1000 लोग बैठे हो, उनकी हालत नीम गर्म हो, खुदावन नहीं होगा। 2-3 भी हो, नीम गर्म हालत होगी, जब वो दुनियादार भी है और खुदा के साथ भी चल रहा है। खुदा भाई 80% लोगों को कबूल नहीं करता जो खुदा के साथ चल रहे हैं, हालांकि कलाम भी जानते हैं वो लोग, कलाम से भी वाकिफ होते हैं, मगर खुदावन ऐसा दिल चाहता है जो कामल हो, जो 100% खुदा के साथ चलने वाला हो। खुदा उनको बचा देता है। लिहाजा जहां पर 2 या 3 हो, रूहानी तौर पर जोश से बड़े हो, खुदा वहां पर मौजूद है, उनकी दुआएं सुनता है, उनको बरकत देता है, हील करता है, शिफा देता है। और आखिरी बात सुन लीजिए, लेकिन आसा बादशाह उसे पांव पर एक रोग लगा, लिखा है कि 2 साल तक ये रोग रहा, मगर लिखा है कि खुदा को छोड़कर तबीबों के पास भागा, डॉक्टरों के पास भागा। डॉक्टरों के पास जाना बुरी बात नहीं है, उस वक्त डॉक्टर जो थे ना वो बड़ी भूत परस्त जादूगर थे, खुदा से उनको दूर कर देते थे, कहते कुर्बानियां लाओ, बकरे लाओ, खुदा से दूर, जिंदा खुदा को छोड़ो, भूतपरस्ती करो, तुम्हें शफा मिल जाएगी। ऐसे लोग, ऐसे तबीबों की बात कर उस दौर के अंदर जो थे डॉक्टर, तो लिखा है कि वो तबीबों का खैर हुआ आसा बादशाह, ये नहीं कि खुदा के पास आ जाए, खुदा से मांगे, खुदा शफा नहीं देगा, इसलिए खुदा ने कहा तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरी तरफ आएगा मैं तुझे बरकत दूंगा, तू मेरा तालब होगा मैं तुझे मिल जाऊंगा। फिर भी लिखा तबीबों के पास भागा, तो लिखा उसकी डेथ होगी 2 साल के बाद। बहुत सारे ऐसे बिलीवर कामल होते हैं, खुदा के साथ भी चल रहे हैं, लदूकिया की कलीसिया की तरह। अगर नीम गर्म हालत होगी तो लिखा वो मुंह से निकाल फेंकेगा। इसलिए भाइयों मुहताज रहे, कोई एक ईमानदार बिलीवर गलतियां करता हुआ नजर ना आए, खुदा की हुजूरी में प्रॉपर वफादारी के साथ 100% उनकी वफादारी खुदा के साथ हो। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा है जो गालिब आए, यीशु मसीह ने कहा मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा। आमीन। जो गालिब आए मुझसे बोलिए क्या करूंगा? अपने साथ तख्तों पर बैठाऊंगा। तो भाइयों जो बंदा पुरजोश होगा, 100% खुदावन के साथ चलेगा, खुदा उसे अपने तख्तों पर बैठाएगा, अपने साथ। आशा ने तो अपनी मां को जो दुनिया के अंदर से ले गई उसे तख्त से नीचे उतारा, मगर यहां वो है खुदा का बेटा, वो हमें तख्तों पर बैठाएगा। आइए अपने सर को झुकाएं।